Hello my dear students, welcome to Adarsh Kucheti YouTube channel. Dear student, today we are going to study class 9. Class 9, it is your chapter 10. It is your chapter 10. It is your chapter 10. Heron's formula. What is Heron's formula? Heron's formula is to find the area of a triangle. Generally we know that area of a triangle. What is the formula of area of triangle? What is the formula? Area of a triangle is half into base into height. It is a formula only for a right angle triangle, where base and height both are given. It is a right angle triangle. ABC. ABC. AB is your height. AB is your height. BC is your base. AC is your what is? Hypotenuse. Hypotenuse. PBH. What is the relation between them? What is the relation between the PBH? H square. Hypotenuse square. H square equal to C square plus B square. It is the triangle formula. This triangle is, what type of triangle is this? A right angle triangle. If this triangle will be equilateral triangle. Equilateral triangle. What is the formula of equilateral triangle? It is a equilateral triangle. All three sides are equal. Equilateral. Equilateral triangle. What is the formula of area? एरिया फॉर्मूला क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या है? समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला कौन? एरिया क्षेत्रफल जाको तमे कहउछ √3/4 into a square. What is a side of the triangle? √3/4 a square. But if the triangle is this type of triangle, this triangle is ABC, three sides of this triangle, ABC. This is a scalene triangle. What do you mean by scalene triangle? Every sides of the triangle are unequal. Unequal. Three sides are three unequal sides. The triangle having three unequal sides. Close the door. Unequal sides. Three unequal sides is your scalene triangle. What is isosceles triangle? Having two sides equal. But this triangle have no sides equal. Each sides are different to each other. It is equilateral triangle. It is your right angle triangle. But it is your scalene triangle. Scalene triangle. तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमको मिल गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला भी मिल गया. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? सत्य एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला. राइट एंगल ट्रायंगल, दिस एंगल इज योर राइट एंगल 90 डिग्री. दिस इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल. ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल. फॉर्मूला इज √3/4 a square. But this is your scalene triangle. Scalene triangle का फॉर्मूला हमको मालूम नहीं. If base is given and height is given, then you will find it. Otherwise, you will not find this. Yes or no? Base given होगा and height given होगा तो तुम निकाल सकते हो क्या एरिया. But without base and height, you cannot find it. If only three sides given, can you find the area of the triangle? Yes. Only three sides are given. That means A is given 10 cm. Here A is. B is given 17 cm. C is given
11 cm. Then find the area of this triangle. Is it possible for you? No. सर हमें ड्रॉ करी परियोजना की How can you draw a perpendicular area and how can you find this? It is a problem at all. You can draw a perpendicular, but how can find it? Very simple. An Egyptian mathematician, Herons, find out the formula. Herons is an Egyptian mathematician. Worked in applied mathematics. Worked in applied mathematics. First time he produced the formula to find the area of each and every triangle. In this way you can find if three sides of a triangle are given, then formula of the triangle is, where is my duster? Now let's go to see what is the formula to find the area of any triangle. Equilateral triangle or right angle triangle. Area formula is very clear. Equilateral triangle formula हो गया √3/4 into a square. A is the side of the triangle. Similarly, right angle triangle, it is also pretty easy because formula is half into base into height. But you have no idea about the scalene triangle. A scalene triangle, three sides is given. Both the sides are not. Here it is. कितना मैंने b equal to कितना लिखा था? 12 नहीं कितना 17 से। तो हेरन्स फार्मूला क्या है? हेरन्स फार्मूला Heron's formula is area of a triangle will be area of a triangle. Area of a triangle S into S minus A, S minus B, S minus C, root over. Whole root over. Then what is S? S is half perimeter. S is half perimeter. हाफ पेरीमीटर. पेरीमीटर के बारे में तुमको मालूम है या नहीं? Yes, sir. व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल? सम ऑफ थ्री साइड्स. Three sides. S is a half perimeter. That means S equal to A plus B plus C by 2. S is A plus B plus, here it will be 10 plus 17 plus 11 divided by 2. कितना हुआ? 10, 17, 11. एडिशन वैल्यू विल बी कितना होगा? 38 डिवाइडेड बाय 2. 1 plus 7 8 1 1 1 38 डिवाइडेड बाय 2 9. तो एज तुमको मिल गया कितना? 19. नाउ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी व्हाट विल द एरिया? एरिया क्या होगा? पुट द फार्मूला. S into S minus A, S minus B, S minus C, whole root over. S का वैल्यू क्या होगा? 19. 19 into 19 minus 10 into 19 minus 19 minus B 17 and the 19 minus 11 इसका root over. Whole root over. Now it will be 19 into 19 minus 10 कितना? 9. 19 minus 17 कितना? 2. 19 minus 11 कितना? 8. इसका रूट ओवर. होल रूट ओवर. ये हुआ तुम्हारा एरिया. But given value will be simply you can find the root over. तुमको ऐसे
ए बी सी का वैल्यू इतना ही आएगा जिसको तुम रूट ओवर निकाल सकते हो। हियर इट विल बी 19 इंटू 9 हो गया तुम्हारा 3 इंटू 3। हियर 2, ये इट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2। ये सब नो, इसका रूट ओवर कितना आएगा? डबल 3 का सिंगल 3, ये डबल 2 डबल 2, एक 2 ही आएगा। रूट ओवर आ जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया? 12 रूट 19 आ गया। ये दिया। इफ यू विल फाइंड द रूट ओवर 19 का रूट ओवर तुम निकाल सकते हो, 19 का रूट ओवर, देन यू विल फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। नाउ समथिंग अबाउट योर मैथमेटिक्स हेरन्स। यहाँ तो एक पैराग्राफ अबाउट योर मैथमेटिक्स हेरन्स, हेरन्स के बारे में एक पैराग्राफ है। ये भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है ये हेरन्स के बारे में। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इजिप्टियन मैथमेटिशियन, अलेक्जेंड्रिया में जो पैदा हुए थे। 10 AD, 10 AD का मतलब AD डेटो में BC और आफ्टर खैट ना बिफोर खैट? AD 10 AD, Alexandria in Egypt, a great mathematician. He worked about the mensuration, that means find the area of a rectangle. Area of, he works on geometrical work, that means find the problems on mensuration written in book 1, details with the area of a square, rectangle, triangle, trapezium, various other special quadrilaterals, just like your square, rectangle तो quadrilateral है, various quadrilaterals just like rhombus, kite and parallelograms, all parallelograms, circles, surface area, cylinder, sphere in his book. Heron has derived the formula for the area of triangles in a term of 3 sides. If only 3 sides given, then you should find the area of this triangle. It is a very simple formula, just your S into S minus A, S minus B, S minus C. Now we will proceed your example 1. Example 1. Here question is given. Example 1. Find the area of a triangle, 2 sides of which are 8 cm and 11 cm and the perimeter is 32. Find the area. पहले ये ब्लैक बोर्ड को साफ करेंगे, उसका बाद now example 1. Example 1 question हाँ क्या गिवन है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 sides of the triangle 8 cm and 11 cm. 2 sides given. Let A equal to 8 cm. It is given B equal to 11 cm. Also perimeter. Perimeter क्या है? 32 सेंटीमीटर. Perimeter 32 cm. What is the perimeter? Sum of 3 sides. That means A plus B plus C is 32. Here A and B are given. A is your 8 cm, B is your 11 cm plus C equal to 32. That implies C will be 32 minus 19. क्या आ गया? 13. तो 13 cm आ गया तुम्हारा C. Now we will proceed to find the area of the triangle. Area का फॉर्मूला क्या है? हेरन फॉर्मूला. Area of a triangle. S into S minus A into S minus B into S minus C का होल रूट ओवर. ये हेरन फॉर्मूला का एक पुराना वीडियो है, आदर्श कोचिंग यूट्यूब चैनल में है. S into S minus A, S minus B, S minus C का रूट ओवर. S क्या है? हाफ पेरीमीटर. That means A plus B plus C by 2. Find the value of 32. Already given perimeter. 32. Given perimeter 32 divided by 2. It will be 16. Now put the values of S, S minus A, S minus B, S minus C. That means it's 16 into
16 माइनस ये क्या है 8 अगेन 16 माइनस 11 अगेन 16 माइनस 4 रूट ओवर नाउ इट विल बी 16 इंटू 16 माइनस 8 क्या आ गया 8 16 माइनस 11 क्या आ गया 15 सॉरी 5 सॉरी नेक्स्ट 16 माइनस क्या आ गया 3 4 रूट ओवर आ गया 16 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 3 then will be 16 4 into 4 8 2 into 2 into 2 8 into 5 into 5 into 3 there are 2 4 you will take only one again you will take only 2 then 2 into 5 into 3 ये रूट ओवर हम निकाल नहीं सकते 2 into 5 10 into 3 कितना हो गया 30 का रूट ओवर रूट 30 ये 8 रूट 30 आ गया 8 रूट 30 इज द एरिया कितना आ गया 8 रूट 30 ये विल फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 30 तुम कैसे रूट 30 का रूट ओवर कैसे निकालेंगे जस्ट लाइक 30 का रूट ओवर क्या पुट करना है 6 36 ज़्यादा हो जाएगा 5 इंटू 5 क्या आ गया 25 5 फिर इट विल बी प्लस 5 क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड 8 में था रूट ओवर रूट स्क्वायर रूट क्यूब रूट एक चैप्टर था अब ये 10 हो गया पुट द डेसिमल पॉइंट एंड हियर you will drop 2 zeros at a time ये हो गया 500 अब क्या पुट करेंगे 5 तो ज़्यादा हो जाएगा 4 लेने से ठीक होगा 4 4 जा 16 पुट 6 कैरीज 1 4 0 0 1 4 1 जा 4 416 हो गया अब सब्ट्रैक्ट करने से क्या आ जाएगा 4 इधर 84 आ गया डेसिमल पॉइंट इसलिए वी कैन पुट 2 zeros ये हो गया 84 100 हियर इट विल 801 108 तुमको क्या चाहिए 8400 ओनली यू विल टेक 7 लेने से क्या होगा 7 7 49 पुट 9 कैरी 4 7 8 क्या हो गया 56 4 60 4 0 कैरी 6 7 0 6 7 1 जा 7 इसको और सब्ट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं 8 इंटू रूट 30 का वैल्यू यू कैन पुट 5.47 but at least you can take a 3 decimal places in this way you will be able to find the area of this triangle now example 2 now it is your example 2 a triangular park ABC has sides 120 meter, 80 meter and 50 meter. A triangular park. It is your triangular park. These 3 sides of this triangular park is your. It is your 80 cm. It is your 50 cm and this is your 120. Sorry, cm नहीं meter है. 50 meter. 50 meter. Yes. 50 meter, 80 meter and 120 meter. Now, a gardener, Dhania, has to put a fence. Fence means the surrounding fence. Bard जैसे बाड़ नहीं has put a fence all around it and also plant grass inside. ग्रास प्लांट करना है इनसाइड दिस ट्रायंगल तो ये एरिया पुट करना है और फेंस अराउंड द पेरीमीटर जो
कंपाउंड बनाना है, बट नॉट ये कंपाउंड फेंस नट ब्रिक एंड स्टोन्स, ब्रिक एंड स्टोन्स से कंपाउंड नहीं बनेगा, ओनली सराउंडिंग होगा, फेंस बनेगा। हाँ, देन प्लांट द ग्रास इनसाइड दिस। हियर ए क्वेश्चन, हाउ मच एरिया डज ही नीड टू प्लांट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग का कॉस्ट हमको निकालना है। इफ विथ ब्रॉड वायर्स, इफ इट sorry not broad but barbed wire at the rate of rs20 per meter, having a space 3 cm wide for gate on side। तो पहले हमको एरिया निकालना है। here a b c given, a is your 50 cm, sorry 50 meter, b is your 80 meter, c is your 120 मीटर। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फॉर्मूला इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल, हेरन फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का होल रूट आउट। तो एस क्या है, हाफ पेरीमीटर, एस इक्वल टू a plus b plus c by 2, a is your 50, b is your 80, c is your 120 divided by 2, ये 120 80 200 हो गया, ये 50 250 divided by 2 आ गया तुम्हारा 125 आ गया yes। तो अब पुट द फॉर्मूला s into that means 125 into 125 minus 50, 125 minus 120, 125 minus तो b 80, इधर 80 देखो ठीक होगा, 125 minus 120, इसका होल रूट ओवर आ जाएगा। तो कितना आएगा, 125 into 125 minus 50, ये आ गया तुम्हारा 75। सिमिलरली 125 minus 80, ये आ गया तुम्हारा 45। सिमिलरली 125 इंटू 120, ये आएगा ओनली 5। तो रूट ओवर निकालना है। ये 125 ये आएगा तुम्हारा 5 5 5 5 5 25 इंटू 5 125 5 5 5, और ये 75 जो है ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 45, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, इधर नेक्स्ट 5। तो इसका रूट ओवर आ जाएगा। कितना 5 इधर है, ये 2 तो 5 के लिए एक तो, ये 2 तो के लिए और ये फिर रूट 5 आ जाएगा इधर, ये 5 एंड 5 अनदर 5 आ गया इधर, देयर आर 2 था, ये एक 3 आ जाएगा, और ये बच गया तुम्हारा ये 3 एंड दिस 5 रूट 15 इंटू रूट 15। तो टोटल आ जाएगा 5 5 5 125 इंटू 3, 125 इंटू 3 375 इंटू रूट 15 आ गया तुम्हारा आंसर। 375 इंटू रूट 15 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा तुम्हारा एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये फेंसिंग के लिए, ये तो एरिया निकल गया, ये प्लांटेशन करने के लिए एरिया निकल गया 375 रूट 15 मीटर क्यूब, ये एरिया फॉर द प्लांटेशन दिस एरिया। नाउ फेंसिंग के लिए इसको कितना चाहिए, फेंसिंग मीन्स सराउंडिंग दिस ट्रायंगल का सराउंडिंग ऑल 3 साइड्स, इधर पेरीमीटर जो फेंसिंग इतना ही होगा 120 50 ये 80, ये आ जाएगा तुम्हारा 225, ये तो 200 ये 120 ये आ जाएगा 200 ये 50 250 मीटर आ जाएगा पेरीमीटर। बट इधर क्वेश्चन गिवन 3 मीटर फॉर गेट, 3 मीटर इधर क्वेश्चन
गिवन है, क्या गिवन है? 3 मीटर वाइड फॉर गेट, 3 मीटर वाइड, 3 मीटर फॉर गेट, ये खुला है। 3 मीटर लिविंग प्लेस, लिविंग 3 मीटर पर गेट, तो टोटल आ जाएगा 250 माइनस 3, 247 मीटर आ जाएगा फेंसिंग के लिए वायर चाहिए। और रेट क्या है? रेट है 20 पर मीटर, आर एस 20 पर मीटर, 20 पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा? टोटल कॉस्ट आएगा 247 इंटू 20, तो 2 7 जा 14, पुट 4 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 4840 रुपीज फॉर द फेंसिंग। तो तुम्हारा ये भी आंसर तुमको मिल गया, 2 आंसर ऑलरेडी। 4900, 4000, ये कितना आ गया? 4000 है, ये क्या हुआ? गलत हो गया क्या? 2 7 जा 14, पुट 4 कैरी, सॉरी ये 9 ही होगा। 4940 आर एस, 4940 आ गया, 4940 रुपीज फॉर द फेंसिंग। देन एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन क्या है? Here एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन क्या गिवन है? एग्जाम्पल 3 गिवन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट, ट्रायंगुलर प्लॉट है, ट्रायंगुलर प्लॉट, रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स 3:5:7, and the perimeter is 300 meter. Find the area, ये क्वेश्चन गिवन है, फाइंड एरिया। पहले जो पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर 300 मीटर, पेरीमीटर फॉर्मूला a + b + c = 300 मीटर। तो रेशियो, लेट 3 साइड्स, लेट साइड्स आर 3x 5x and 7x, लेट साइड्स आर 3x 5x 7x, 3x 5x 7x, इसीलिए हमने लिया कि इधर रेशियो है, नॉट 3 cm 5 cm 7 cm साइज। 3 times 3x plus 5x plus 7x is your 300 मीटर। तो ये कितना हो गया? 7 5 12 3 15, 15x = 300, that implies x is equal to 300 by 15, x is your 20, x is your 20 मीटर, x is 20 मीटर, ये 15 to 30 ये 0। तो तुमको a क्या मिलेगा? 3x, 3 into 20 6 मीटर आ गया। b क्या मिल जाएगा? b मिलेगा 5 into 20 दैट इक्वल टू 100 मीटर, एंड c आ जाएगा 7 into 20 140 मीटर। तो ये भी टोटल 300 बन जाता है। ये सी जी हाफ पेरीमीटर, a + b + c पेरीमीटर बाई 2, पेरीमीटर 300 गिवन है बाई 2 150 मीटर आ गया। यस। अब एरिया का फॉर्मूला क्या? फॉर्मूला मालूम है हमको, हेरेंस फार्मूला, एरिया एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का होल रूट ओवर, ये तो एरिया का फॉर्मूला है। अब पुट द वैल्यूज, एस 150 इंटू या 150 माइनस ए क्या है 60, 150 इंटू 60, नेक्स्ट 150 माइनस ये बी 100, नेक्स्ट 150 माइनस ये सी इतना 140, तो इसका होल रूट ओवर बन जाएगा 150 माइनस ये आ जाएगा तुम्हारा 150 माइनस 60 90, 150 माइनस 100 ये आ जाएगा 50, 150 माइनस 150 40 ये आ जाएगा 10। तो इसका रूट ओवर कैसे निकालेंगे? इधर 150 है, 5 इंटू 3 15 इंटू 10, इधर 90 3 इंटू 3 इंटू 10, इधर 50
5 into 10 एंड ये 10 ऐसे छोड़। हाउ मेनी 10? 1 2 3 4, ये दोनों के लिए एक 10, ये दोनों के लिए एक 10, 10 into 10 पहले आ गया। ये 3 इधर 3, ये दो 3 के लिए तो 3 हम ले लिया, और 5 इधर एक तो 5, इधर एक तो 5, ये भी एक 5 हम ले लिया। लेकिन पेयर ना बना तो ये √3 आ गया, और ये आ जाएगा 10 10 100, 100 into 3 300 into 5 1500, √3 आ गया तुम्हारा एरिया दिस ट्रायंगल 1500 √3। नाउ एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज ओनली देयर आर 6 क्वेश्चंस, ओनली 6 क्वेश्चंस आर देयर। पहला क्वेश्चन क्या है? ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड indicating school ahead, a traffic signal board about your school ahead, drive slow, इसे एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है। is an equilateral triangle with side A, find the area of the signal board using Heron's formula if it is perimeter is 180 cm, what will be the area of this signal board? पहले ये बोर्ड को साफ करना है। हाँ बच्चे, ये गिवन एक्सरसाइज 10.1, ये ओनली एक्सरसाइज 10 है, लेकिन इधर बुक में 10.1 लिखा है, एक्चुअली 10.2 इधर एक्सरसाइज नहीं है, फिर मैंने 10.1 ही लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इन इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप विथ ए साइड ए, पेरीमीटर इज 180 cm, फाइंड द एरिया। एक्चुअली इट इज प्रेटी इजी, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हमको मालूम है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज योर √3/4 into a स्क्वायर, बट इधर ये एरिया हम पुट नहीं करेगा, क्योंकि गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला। हेरन्स फार्मूला यूज करके इसका एरिया निकालना है। तो हेरन्स फार्मूला आपको मालूम है, पेरीमीटर 180 cm गिवन, दैट मीन्स S equal to हाफ पेरीमीटर A plus B plus C by 2, दैट मीन्स पेरीमीटर 180/2, 80/2 तो तुमको आ जाएगा 90, एंड दो इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसका जो हाफ पेरीमीटर A plus B plus C नहीं आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 3, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, 3 साइड्स आर इक्वल। इधर जो सिग्नल बोर्ड है ये इक्वल साइड्स का है। A plus A सम ऑफ 3 साइड्स इज योर 3A। 3A is your 180, 3A equal to 180, that implies A is 180 divided by 3, it will be your 60, इधर मीटर या cm क्या गिवन है, 180 cm, 60 cm बन गया। तो इधर A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 60 cm ईच, क्योंकि इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो हेरन्स फार्मूला तुमको मालूम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हेरन्स फार्मूला S into S minus A, S minus B, S minus C होल √1। A इक्वल टू B इक्वल टू C तुमको गिवन है, तो हम पुट कर सकेंगे, पुट करेंगे। S का वैल्यू क्या है, हाफ पेरीमीटर, ऑलरेडी S का वैल्यू हमको मालूम है 90, नाउ इट विल बी 90 minus 60, सिमिलरली इधर 90 minus 60, 3 times 90 minus 60, क्योंकि ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तो ये 90 तो 90 ही रहेगा, इंटू 90 minus 60 ये आ जाएगा 30, सिमिलरली ये 90 minus 60 अगेन 30, तो इसका रूट ओवर कैसे निकालेंगे। 90 तुम्हारा बन गया 3 into 3 into 10, 90 हो गया, 30 आ गया 3 into 10, अगेन 3 into 10, अगेन 3 into 10, इसका होल रूट ओवर क्या बनेगा, इधर देयर आर 2 3, तो एक तो 3 हमको मिल गया, इधर ये 10 and 10 और एक तो 10 मिल गया, इधर ये 10 and 10 अगेन अनदर 10,
तो 10 खत्म हो गया। इधर ये हाँ 10 एंड 10, एक 10 तो मिला था, ये दिस 10 एंड दिस 10, उसको अनदर 10 मिल गया। और ये जो 3 है, दिस 3 एंड 3, एक तो 3 मिल गया और ये √3 बन गई। हाँ, तो तुमको आ गया टोटल 3 3 जा 9, 10 10 900 टोटल हो गया 900 √3 CMQ इज योर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो नंबर 1 खत्म हो गया। अब नंबर 2 क्वेश्चन क्या है गिवन? नंबर 2 क्वेश्चन है द ट्रायंगुलर साइड walls of a flyover have been used for advertisement। एडवर्टाइजमेंट के लिए वो जो फ्लाइंग ओवर है, ओवर ब्रिज जो है, एक ट्रायंगुलर एरिया अवेलेबल फॉर द एडवर्टाइजमेंट। द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 120 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट yield मीन्स जो अर्न करेगा एडवर्टाइजमेंट, अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर तुमको मिलेगा 5000 पर मीटर स्क्वायर। अरे ये एरिया CMQ कैसे बन गया? CM स्क्वायर बनता है, एरिया का क्यूब बनता है क्या? CM स्क्वायर ऑलवेज एरिया मीटर स्क्वायर और CM स्क्वायर, वॉल्यूम ओनली क्यूब होता है। सॉरी फॉर दिस। हाँ तो पर मीटर स्क्वायर ये it will earn 5000 per year. A company had one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? पहले हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, उसका बाद द कॉस्ट। Here question number 2, the triangular side walls of a flyover have been यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए एक ट्रायंगुलर वॉल यूज करना है। द साइड्स ऑफ द वॉल, द साइड्स ऑफ वॉल्स आर 122 मीटर, 20 मीटर एंड 120 मीटर, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर इज गिवन हियर। द एडवर्टाइजमेंट cost or earning per meter square and per year, cost is 5000 per year and per meter square. So what is the cost? A company had this wall for 3 months। 3 months के लिए कंपनी को कितना पेमेंट करना है ये हमको निकालना है। पहले हम क्या करेंगे? पहले एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ दिस वॉल, एरिया ऑफ दिस वॉल, area of this wall by applying Heron's formula S into S minus A, S minus B, S minus C का होल रूट ओवर। S कितना आएगा हाफ पेरीमीटर A प्लस B प्लस C बाई 2। ये तुम्हारा कितना A इज 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2। ये टोटल समेशन क्या आएगा? 122, ये 22 आ गया 144, ये 120, तो टोटल आ जाएगा 164। 164 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा तुम्हारा 82 मीटर सेम मीटर, 82 मीटर, 82 इधर ये 122 प्लस 22, ये आ गया तुम्हारा 144, 22 22 44, ये 100, 144, ये 20, ये 120, ये आ जाएगा 144, ये 20, ये 264, ये आ जाएगा तुम्हारा, गलत हो गया, 132 आएगा, 132 मीटर आ गया तुम्हारा हाफ पेरीमीटर, क्योंकि ये 200 है, ये 264 बाई 2, 132 मीटर आ गया हाफ पेरीमीटर। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ एस ए बी सी 132 इंटू ये 132 माइनस 100, पहले 122, सिमिलरली 132 माइनस ओनली 22, सिमिलरली थर्ड साइड इज 132 माइनस 120।
120, इसका रूट ओवर निकालना है, होल रूट ओवर 132 माइनस 120। पहले ये 120 इधर इधर मैंने आंसर 132 माइनस 122, it is only 10. Similarly 132 माइनस 22, ये आ गया 110। ये 132 माइनस 120, ये आ जाएगा तुम्हारा ओनली 12, ओनली 12, ये रूट ओवर। तो 132 का रूट ओवर निकालना है। मैं सोचता हूँ ये हो जाएगा 12 इंटू 11, 132 आएगा। 11 टू जा 22, पुट 2 कैरी 2, ये 11 1 जा 11 2, 11 टू 132, हाँ आ गया। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12 इंटू 11 इंटू एक 10 इधर छोड़ दो ऐसे, अब ये 110 आ जाएगा। 11 इंटू 10 इंटू ये 12, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। और इसको छोटा करना कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इधर एक 12 है, इधर एक 12, 2 12 के लिए एक तो 12 हमको मिल गया, ले लिया। इधर ये दोनों जो 11 के लिए एक तो 11 मिल गया, ये 10 एंड 10 के लिए एक 10, यह परफेक्ट स्क्वायर रूट बन जाता है। 11 इंटू 12 तो हमको 132 मिल गया, 132 इंटू 10, 132 10, ये है इतना आ गया तुम्हारा सर सीएम स्क्वायर। ये सीएम था ना वाल, सॉरी मीटर था, सीएम नहीं, ओनली मीटर, मीटर भी गिवन, हाँ मीटर स्क्वायर 1320 मीटर स्क्वायर, ये तुम्हारा एरिया बन गया। अब कॉस्ट निकालना है सिंपली 3 मंथ्स के लिए। तो कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट RS 5000 ये पर मीटर, RS 5000 पर मीटर, इट इज पर ईयर। तो तुमको मालूम है 1 ईयर 12 मंथ्स, 12 मंथ के लिए दिस 1 मंथ के लिए, तो पर 1 मंथ के लिए ये 50,000 डिवाइडेड बाय 12 पर 3 मंथ्स, 1 मंथ नहीं, हमको 3 मंथ्स से निकालना है। 3 मंथ्स के लिए ये 5000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, तुम्हारा ये बन जाएगा 34, 5000 डिवाइडेड बाय 4। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा? टोटल कॉस्ट आएगा ये पर मीटर फॉर 3 मंथ से आ गया। टोटल हमको पेरीमीटर एरिया हमको मिला है 1320 मीटर स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा तुम्हारा 5000 डिवाइडेड बाई 4 में ये कैंसिल हो जाएगा। 4 3 12 आ गया 1, ये अगेन 12, 4 3 20, 3 3 0 एंड 5 ओनली 33 में 5 मल्टीप्लाई कर देने से हो जाएगा। 5 3 जा 15, पुट 5 कैरी 1, 5 3 15 1 16 एंड ये 0 इधर ये 3 तो 0 आ गया। तो ये आ जाएगा 1 10 100 1000 165,000, दैट मीन्स 16,50,000, 16,50,000 हो गया तुम्हारा आंसर। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या गिवन है? क्वेश्चन 3 गिवन है देयर इज ए slide in a park. One of the slide walls has been painted in some color with message keep the park green and clean. ये मैसेज लिखा है ये वॉल में। दिस वॉल का साइड सब क्या गिवन है? साइड्स ऑफ दी वॉल, साइड्स स्लाइड का ये वॉल है, साइड्स तुम्हारा आएगा 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर ओनली। तो फाइंड एरिया पेंटेड इन कलर, तो एरिया फाइंड आउट करना है। तो तुमको गिवन है ए इक्वल टू 15 मीटर, बी इक्वल टू 11 मीटर, सी इक्वल टू 6 मीटर। ओनली ए बी सी आर गिवन। एरिया तो तुमको मालूम है, हेरेंस फार्मूला एच इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट ओवर, इट इज वेरी इजी नंबर। एच इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए इज 15, बी इज 11, सी इज 6 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना आ जाएगा? 11 ये 6
1 6 7 5 12 पुट 2 कैरी 1 1 2 3 32 बन गया 32 डिवाइड बाई 2 16 मीटर 16 मीटर आ गया यस तो फार्मूला अब पुट द वैल्यूज 16 इंटू 16 माइनस पहले ये 15 हो गया देन 16 माइनस 11 आ गया देन 16 माइनस 6 आ गया तो इसका होल रूट ओवर निकालना है 16 माइनस 15 1 आ गया 15 11 6 हाँ ठीक है नाउ 16 माइनस 11 ये आ गया 5 16 माइनस 6 ये आ गया 10 इसका रूट ओवर निकालना है तो 16 का आ गया तुम्हारा 4 इंटू 4 और 5 इज हियर 10 इज और 5 इंटू 2 इसका होल रूट ओवर कितना आएगा इधर 2 4 है इसलिए एक तो 4 हमको मिल गया 2 तो 5 के लिए एक तो 5 मिल गया इधर ये 2 रूट 2 बन गया और 5 इंटू 4 20 रूट 2 मीटर क्यूब आ गया एरिया ऑफ दिस वन नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन 4 क्या गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू साइड्स व्हिच आर 18 cm 10 cm एंड पेरीमीटर इज 42 cm तो ये क्वेश्चन नंबर 4 टू साइड्स लेट टू साइड्स ए इज योर 18 cm बी इज योर 10 cm पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर भी गिवन है पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू योर 42 cm पेरीमीटर 42 cm गिवन है तो सी क्या आएगा 18 प्लस 10 प्लस सी इज योर 42 सी आ जाएगा 42 माइनस ये आ गया 28 तो कितना आएगा सी आएगा 14 cm 14 cm सी आ गया एस तुमको मिलेगा पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 दैट मीन्स 42 डिवाइडेड बाई 2 21 आ गया नाउ एस इंटू एस माइनस एस इंटू दैट मीन्स 21 इंटू 21 माइनस ए इज योर 18 सिमिलरली इट विल 21 माइनस बी इज योर 10 सिमिलरली 21 माइनस सी इज योर 14 आ गया सॉरी हाँ 14 आ गया तो तुमको एस मिल गया हाफ पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 पेरीमीटर 42 गिवन तो 42 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 21 माइनस 18 ये ए 21 माइनस 10 वैल्यू ऑफ बी 21 माइनस वैल्यू ऑफ सी इज योर 14 तो तुमको 21 इंटू 21 माइनस 18 ये आ गया ओनली 3 21 माइनस 10 ये आ गया 11 21 माइनस 14 ये आ गया तुमको 7 इसका रूट ओवर निकालना है ये 21 बन गया तुम्हारा 7 इंटू 3 इंटू 3 11 इधर रिमेन अनचेंज एंड 7 ऑल्सो रूट ओवर निकालना है ये इधर एक 7 है इधर एक 7 है 2 7 के लिए एक तो 7 ले लिया 2 तो 3 के लिए एक तो 3 हमको मिल गया और रूट 11 ऐसे बरकरार एंड 7 इंटू 3 आ गया 21 ये रूट 11 21 रूट 11 ये तुम्हारा सी एम में था तो सी एम क्यू आ गया तुम्हारा एरिया जैसे ट्रायंगल तुमको मिल गया 21 रूट 11 इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ 11 देन यू विल गेट द परफेक्ट वैल्यू देन क्वेश्चन नंबर 5 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो एक ट्रायंगल रेशियो में गिवन इसको भी करेंगे नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है साइड्स ऑफ a triangle are in ratio 12:17:25 12 17 25 perimeter is 540 find the area let sides share 12x 17x and 25x perimeter क्या है perimeter a plus b plus c equal to 540 also given a का वैल्यू क्या आएगा लेट इट इज 12x प्लस 17x प्लस 25x इक्वल टू 540 तो ये 12 17 25 ये 25 और 12 ये बन गया तुम्हारा 37 ये आ गया 17 तो ये 54 आ गया
54x. That implies 54x equal to 540. That implies x will be 540 divided by 54. Answer will be 10. तो x तुमको a plus b plus c 540 cm गिवन, 540 cm गिवन. तो a b c पहले निकालना है, उसका बाद ये क्या. तो ये क्या आएगा, a आएगा 12x, 12 into 10 120 cm आ गया. b कितना आएगा, b 12 में सॉरी b आएगा 17 into x, 17 into 10 170 cm आ गया. c कितना आएगा, c आएगा तुम्हारा 25 into 10 ये आएगा 250. टोटल कितना होता है 5 7 12, 12 2 14, पुट 4 kg1, ये 1 1 2 1 3 2 5 5 आ गया. अब ए बी सी तो तुमको मिल गया. एस गिवन है, सॉरी पेरीमीटर गिवन है, एस इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी 540 गिवन, 540 बाई 2 2 2 जा 4, इधर 2 आ गया, 1 2 7 270 आ गया. अब एरिया का फॉर्मूला, एरिया तुमको मालूम है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का होल रूट ओवर. ये ज़्यादा लंबा होगा तो एस का वैल्यू क्या है 270 है, इंटू एस माइनस ए 270 माइनस ए इज 120. सिमिलरली एस माइनस बी 270, डी का वैल्यू ये 170, एस माइनस सी 270 माइनस ये सी का वैल्यू 250. इसका होल रूट ओवर निकालना है. तो ये 270 इंटू 270 माइनस 120 ये 150 आ गया. सिमिलरली 270 माइनस 170 ये 100 आ गया. सिमिलरली 270 माइनस 250 ये ओनली 20 आ गया. तो इसका रूट ओवर निकालना है. तो 270 ये आ गया तुम्हारा 27, 3 इंटू 3 27 इंटू ये 10 आ गया 270. 150 ये आ जाएगा 5 इंटू 3 15 इंटू ये 10 आ गया. सिमिलरली 100 आ जाएगा 10 इंटू 10 100. सिमिलरली 20 आएगा 5 इंटू ये 4. इसका रूट ओवर निकालना है. 2 तो 3 ये के लिए 1 3 तो हमको मिल गया. ये अनदर 3 2 तो 3 अल्सो मिल गया. ये 3 आ गया. ये 10 एंड 10 दो 10 के लिए ये 10 मिल गया. ये ऑल्सो डबल 10, इसको अनदर 10 मिल गया. और ये 5 एंड दिस 5 ऑल्सो एक 5 मिल गया. 4 का रूट ओवर तुमको मालूम है 2. तो तुमका आंसर क्या आएगा 3 3 जा 9 9 इंटू 5 45 45 इंटू 2 90 ये डबल 10 90 डबल 10 इतना CMQ 9000 CMQ आ गया तुम्हारा आंसर. नाउ इट ऑल्सो 5 number finished. Similarly question number 6, an isosceles triangle has a perimeter 30. Isosceles triangle means two sides are equal. इसका also question number 6, it is the last number of this chapter. An isosceles triangle means two sides are equal. Two sides are equal. Let this is isosceles, this is an isosceles triangle ABC. Two equal sides. Perimeter is your 30. Perimeter is your 30. Perimeter 30. Each of the equal sides 12. तो फाइंड एरिया ईच इक्वल साइड 12 12 12 ईच हो गया. तो सी तुमको मिलेगा. पेरीमीटर का मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज योर 30. ए इज योर 12, बी इज 12. इट इज योर ए सॉरी ए ऐसे ही नेमिंग करना चाहिए. ये आ जाएगा ये आ जाएगा बी ए सी, क्योंकि ये कैपिटल ए का फ्रंट में स्मॉल ए आता है, कैपिटल बी का फ्रंट में स्मॉल बी, कैपिटल सी का फ्रंट में स्मॉल सी आता है. ये रूल है ट्रायंगल का. तो 12 प्लस सी तुमको 30. 12 आ गया 24 प्लस सी इक्वल टू 30. तो सी आएगा 30 माइनस 24 तो 6 CM आ गया तुम्हारा सी. ए बी सी फाइंड आउट हो गया. ए बी सी मिल गया. तो तुमको एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया का फॉर्मूला तुमको फिर और एक बार लास्ट टाइम एस माइनस ए का एस माइनस बी एस माइनस सी का होल रूट ओवर निकालना है. एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का रूट ओवर. एस क्या आएगा, हाँ ये भी बता देता हूँ. एस क्या आएगा हाफ पेरीमीटर.
ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 पेरीमीटर तुम्हारा कितना 30 गिवन है 30/2 15 आ गया ए सर यस का वैल्यू 15 आ गया इधर 15 एंड 15 माइनस 12 क्योंकि ये आइसोस्केल है 2 साइड्स इक्वल है नाउ इट विल बी 15 माइनस 6 तो क्या आएगा 15 होल रूट ओवर 15 तो 15 आ गया 15 माइनस 12 आ गया ओनली 3 15 माइनस 12 अनदर 3 15 माइनस 6 आ गया 9 ये 15 का रूट ओवर कैसे आएगा 5 इंटू 3 ये डबल 3 हियर 9 का रूट ओवर तो ये 2 3 के लिए 3 आ गया ये 9 का रूट ओवर ये भी 3 आ गया लेकिन 5 इंटू 3 15 ओके 3 इंटू 3 9 इंटू रूट 15 आ गया तुम्हारा एरिया पर दिशा आइसोस्केल ट्रायंगल 9 रूट 15 तो बच्चे इधर ये एक्सरसाइज 10.1 खत्म हो गया ऑल्सो एग्जाम्पल का साथ ये थोड़ा लंबा हो गया ये वीडियो जरूर इसको तुम फॉलो करना है लाइक करना है देखना है जैसे ये नंबर ये हेरन फार्मूला इट इज़ वेरी इजी वेरी सिंपल ओनली सिंगल फार्मूला में टोटल एक्सरसाइज हो गया तो अब इट इज़ द एंड ऑफ दिस क्लास जय जगन्नाथ।